بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ پیپلز پارٹی کا پیکا قانون عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے پیکا ایکٹ حکومت کا خوف ہے، میڈیا پر قدغن لگانا چاہتی ہے، حکمران اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا اپوزیشن کا متحد ہونا جمہوریت کی جیت ہے، مہنگائی نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ اس وقت لاقانونیت ہے، آئے دن بجلی پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، گیس ملتی نہیں ہے، لوگوں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے۔ خوف کی وجہ سے وہ قدغنیں لگانا چاہتے ہیں میڈیا کے اوپر۔ پولیٹیکل پارٹیز نے اور تمام آرگنائزیشنز جو آپ کی ہیں میڈیا کی، انہوں نے اس کو رد کیا ہے۔ پارلیمنٹ کو کسی طریقے سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی وہ منظم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافی محسن بیگ کے خلاف مقدمات خارج کرنے سے متعلق کیس میں ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر ونگ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر ونگ نے صدا کی، ہمیں مارا پیٹا گیا، ہم بھی آپ کے بچے ہیں، رحم کریں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر من اللہ نے کہا ان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں، ایف آئی اے نے ہمیشہ اختیارات کا غلط استعمال کیا، آپ کا کام کسی بااثر شخصیت کی ریپوٹیشن بحال کرنا نہیں۔ عدالت عالیہ نے پیکا سے متعلق تمام کیسز یکجا کر دیے، دیگر 2 درخواستیں بھی نمٹا دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے صحافی محسن بیگ کے خلاف مقدمات خارج کرنے سے متعلق کیس میں ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے پیکا سے متعلق تمام درخواستوں کو یکجا کر دیا۔ عدالتی حکم پر ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر ونگ پیش ہو گئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر من اللہ نے استفسار کیا، شکایت کنندہ اسلام آباد میں تھا تو مقدمہ لاہور میں کیوں درج ہوا؟ کہ ایف آئی اے پبلک آفس ہولڈر کی ساکھ کی حفاظت کے لیے کام کر رہا ہے؟ ملزم نے ایف آئی اے اہلکاروں کو مارا، ہم بھی آپ کے بچے ہیں۔ چیف جسٹس عطر من اللہ نے کہا ان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں، آپ کو تو شرمسار ہونا چاہیے تھا، کیا اس ملک میں مارشل لا لگا ہوا ہے؟ چیف جسٹس نے ڈائریکٹر ایف آئی اے سے استفسار کیا، آپ نے تمام شکایات پر گرفتاریاں کی، انکوائری کے بغیر چھاپا اس لیے مارا کہ شکایت وفاقی وزیر کی تھی، ٹاک شو ٹیلی ویژن پر ہوا تو پھر پیکا ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا، جس پر ڈائریکٹر ایف آئی اے نے جواب دیا، ٹاک شو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو شکایت پر کارروائی کی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کیا ملزم نے وہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل کیا، پروگرام میں بیٹھے باقی افراد کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا؟ عدالت نے کہا اٹارنی جنرل مطمئن کریں کہ پیکا ایکٹ کی سیکشن 21D کو ہی کیوں نہ کالعدم کر دیا جائے، کسی کی ساکھ اختیارات کے غلط استعمال سے نہیں بچتی، پبلک آفس ہولڈر پر لوگوں کا اعتماد ہی ان کی اصل ساکھ ہے۔ عدالت نے محسن بیگ کے خلاف لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ کے ذریعے دائر مقدمہ اخراج کی درخواست نپٹا دی۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ذیشان سید، نیو نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں صحافی محسن بیگ کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ محسن بیگ کے وکلاء نے میڈیکل رپورٹ کے حصول کے لیے عدالت میں ایک اور درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے ایم ایس پولی کلینک کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے ایم ایس پولی کلینک اور ریکارڈ سمیت 23 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ دوران سماعت پولیس کی جانب سے مزید ریمانڈ کی درخواست پر عدالت نے استفسار کیا کہ مزید ریمانڈ کیوں چاہیے۔ سرکاری وکیل نے کہا پولی گرافک ٹیسٹ کرانا ہے، بعض ویڈیو ان سے برآمد کرنی ہے۔ عدالت نے پوچھا 3 دن میں کیا کیا؟ 6 روز سے محسن بیگ آپ کے پاس ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے جوڑ توڑ، پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کی ملاقات آج ہوگی۔ ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے متعلق امور پر مشاورت ہوگی۔ ملاقات میں دونوں جماعتوں کے وفود بھی شریک ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ ملک کی سیاست میں ہلچل، اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے لیے رابطوں میں تیزی، حکومت نے بھی ڈٹ کر مقابلے کی ٹھان لی۔ ذرائع کے مطابق حکومتی رہنماؤں نے وزیر اعظم کو جہانگیر ترین سے صلح کرنے کا مشورہ دے دیا، جبکہ شاہ محمود قریشی سمیت چند دیگر رہنما نے تجویز کی مخالفت کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم نے دونوں تجاویز پر غور شروع کر دیا ہے۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے صدر اور سینئر وزیر سردار تنویر الیاس کا کہنا ہے پاکستان میں عدم اعتماد لانے والوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، عمران خان مدت پوری کریں گے، اگلے 5 سال بھی عمران خان کے ہوں گے، وزیر اعظم پاکستان جو چاہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ جولائی کا الیکشن ہوا، انتخابی مہم ہم نے چلائی، لیکن وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر عبدالقیوم نیازی وزیر اعظم بنے، تو اگر اب وزیر اعظم پاکستان کوئی اور حکم دیں گے تو اس پر بھی عمل ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت وہ عدم اعتماد کی یا ریلی یا لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے اندر لیڈ سپر لیڈ لگوانے کے لیے یا 4 کالمی خبر لگوانے کے لیے
या आप ये कह लें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर टिकट चलवाने से ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना रिमेनिंग 1.5 साल का पीरियड ना सिर्फ पूरा करेगी, लेकिन आगे इंशाल्लाह ये नेक्स्ट 5 साल भी लोगों ने इमरान खान को ही देने हैं। इंतखाबी कवायद व ज़वाबित में तब्दीली के सदारती ऑर्डिनेंस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को इंतखाब मुहिम की इजाज़त देने का जायज़ा लिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम कमीशन को कानूनी पहलुओं पर ब्रीफ कर रही है। इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन के आइंदा के लाए अमल का फैसला किया जाएगा। सिंध काबीना ने लाड़काना में कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देने की मंजूरी दे दी। इजलास में मालिकाना हुकूक मुफ्त में देने का फैसला किया गया है। काबीना ने कराची में भी कच्ची आबादियों को मालिकाना हुकूक देने की रजामंदी का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने मेयर KMC को कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, MDA और LDA की गवर्निंग बॉडीज़ के अरकान मुकर्रर करने का अख्तियार देने की मंजूरी दे दी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की गुलकारी की एक और वीडियो वायरल। दोस्तों की फरमाइश पर हमजा शहबाज इनकार न कर सके। तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। कमाल। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये इसी बात का सबूत है कि इनके नंबर पूरे नहीं हुए। ये अभी कि आज की डेट में ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ दावे हैं, ये सिर्फ भड़के हैं और ये सिर्फ मिन्नतें हैं। इसके अंदर कोई हकीकत नहीं। मैं 1 मिनट बात मुकम्मल कर लूँ। दूसरी बात ये है कि ये भी आपने देखना है कि तहरीक अदम एतमाद लाने वाले तहरीक अदम एतमाद ला कर क्या करना चाहते हैं, वो कौन सा ऐसा स्टेप है जो वो लेना चाहते हैं, वो कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो कौन सा ऐसा मंसूबा है जो वो शुरू करना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के ख़िलाफ़ हैं। ये लोग कह रहे हैं, लेकिन ये तो हम जब सियासत में आते हैं तो ये सोच के ही चलते हैं कि जी आपकी भी तनकीद होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अभी बिक्री भी कह रहा हूँ आपसे, तनकीद होती है तो उस पर नाराज़ नहीं होता, ना मीडिया पे होता हूँ ना किसी और पे होता हूँ। इसलिए इससे कुछ चले 10 में से 1-2 चीज़ें दुरुस्त भी होती हैं जो आती हैं, 8 अगर गलत भी हों, लेकिन जो 1-2 चीज़ें जो मुझे ना पता चलें वो इस तरीके से पता चल जाती हैं। बल्दियाती निज़ाम की बात की, आज वैसे हमारे एडवाइज़र साहब करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कैबिनेट हुई है उसमें। मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से अंडरस्टैंडिंग थी, आज काबीना ने उनको मंजूर किया है। इंशाअल्लाह ताला परसों सूबाई असेंबली में वो जो कवानीन में अमेंडमेंट्स है वो पेश होंगी और उसके साथ साथ हम उनको इमीडिएटली पास नहीं करेंगे। हम पहले भी इमीडिएटली पास जो किया था उसकी एक वजह थी, कई बार समझा चुका हूँ, मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि इलेक्शन के कमीशन की तरफ से एक डेडलाइन थी और उस डेडलाइन के तहत अगर हम वो कॉम्पोजिशन नहीं बनाते अपने लोकल काउंसिल्स की तो वो पुराने कानून के तहत कर जाते, जो कि इस वक्त नई मरदमशुमारी आने के बाद वैलिड नहीं था। और डिले भी इसलिए हुई थी कि मरदमशुमारी अप्रूव ही 17 नवंबर को हुई है, जो हमारी मर्जी के खिलाफ हुई है, लेकिन 17 नवंबर के बाद 21 नवंबर को आ गया था इलेक्शन कमीशन से खत, इस वजह से जल्दी की थी। इस वक्त हम ये सारे अमेंडमेंट्स असेंबली में पेश करेंगे। हुकूमत की तरफ से हमारी दरख्वास्त स्पीकर साहब को यही होगी कि एक स्पेशल सेलेक्ट कमेटी बनाई जाए जिसमें अपोजिशन के और सरकार के ट्रेजरी साइड के मेंबरान हों, और ऑलरेडी बात हुई है उस सिलसिले में। और हम उनको कहें कि ना सिर्फ ये अमेंडमेंट्स बट वो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जो भी अमेंडमेंट डालना चाहती हैं वो उस कमेटी के सामने लाएं। उसमें हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या बल्कि इंश्योर करेंगे कि असेंबली के अंदर सब जमातें जो भी मौजूद हैं उन सब को नुमाइंदगी हो, ताकि वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें उस कमेटी में। और फिर वो कमेटी की मर्ज़ी होगी और कमेटी जो भी फैसला करेगी उसके बाद असेंबली की मर्ज़ी होगी कि किस अमेंडमेंट को उन्होंने मंजूर करना है, जिसको नहीं करना है। जो मैं बात करता हूँ ना, एक
जो मैं बात करता हूँ जिसमें बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी, वो अक्सरियत ही करेगी ना, जो भी मंजूर या नामंजूर। असेंबली की अक्सरियत चाहे जिस तरफ वोट करेगी वही मेरा फैसला हो नहीं सकता अकेले का, ये असेंबली का फैसला और असेंबली की अक्सरियत वो फैसला करेगी। लेकिन हर एक को अपना मौक़िफ़ पेश करने का पूरा मौका मिलेगा, उस कमेटी के अंदर भी और असेंबली के अंदर भी, और ये मैं इंश्योर करना चाहता हूँ। और अगर आपने असेंबली उस प्रॉपर माहौल में चलानी है जिसमें आप अपने सिफारिशात पेश करें और डिस्कशन हो और उस पर असेंबली फैसला करे, हम उसके लिए हर वक्त हर तरीके से तैयार हैं। स्ट्रीट क्राइम की आपने बात की, बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है। मैंने कुछ अर्सा पहले IG साहब के साथ मशावरत से कुछ चेंजेस भी लाए थे हम, कोई हफ्ता 10 दिन हुए उन चेंजेस को, और लेकिन वो स्ट्रीट क्राइम ख़ास तौर पे पिछले दिनों में, और मुझे बड़ा अफसोस है जो समा के प्रोड्यूसर की डेथ हो गई थी मतीन साहब की, उससे बहुत ज़्यादा अफसोस है उसका। और भी वाक़यात हुए। आज मेरा अभी इस इवेंट के बाद 4 बजे एक इजलास है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और उसमें बिल्कुल कुछ फ़ैसले लिए जाएंगे। मैं भी आपको नहीं बता सकता, इंशाल्लाह ताला वो आपको बता दिए जाएंगे जो फ़ैसले लिए जाएंगे, ताकि जो भी इसके रीज़न्स हों। मैं कल जब या परसों गया था निसार खोड़ो साहब का फॉर्म सबमिट करने और बाकी हमारे 2 मेंबर्स का, उधर भी मुझसे ये सवाल हुआ था और मैंने यही जवाब दिया था कि एक वजह, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं इस पे बरीओ ज़मा नहीं अपने आप को या हुकूमत को कह रहा, जिम्मेदारी हुकूमत की है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अपने शहरियों को एक सेफ जो है इन्वायरमेंट देना। लेकिन जो इस वक्त मुल्क की माशी हालात है उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, और पूरे पाकिस्तान में। कराची में मैं कहता हूँ हाईलाइट भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा हो भी रहा है, तो कराची है भी, ये लोग तो कहते हैं 1 करोड़ 60 लाख, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा की आबादी का शहर है। और इस शहर के अंदर आपको दुनिया भर की, और कोई और शहर पाकिस्तान तो क्या मेरा ख्याल है दुनिया का भी ये बोस्ट नहीं कर सकता कि हर मुल्क के शहरी यहाँ मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन है उसका भी हमें भुगतना पड़ता है, बलूचिस्तान में जो मसला हो रहा है वो भी सिंध को भुगतना पड़ता है। ये सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से यस, लेकिन हम पहले भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हमने किया है। इस शहर को जब छठा सबसे 6th मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कहा जाता था, तब भी हमने उस पर स्टेप्स लिए, और अब वो 125 है 130 हो गया था। अभी जो हालिया वाक़यात हुए उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और पुलिस को प्रॉपर हिदायत दी जाएगी, और वो एक्शन अगर पुलिस वाले कहीं से भी कहीं उनकी कोताही है उनको सजा दी जाएगी। एक एपेक्स कमेटी हुआ करता था, वो कमेटी कहाँ है, उसको मरहूम कहें एपेक्स कमेटी को। ऐसे हालात होते थे, एपेक्स कमेटी का बाकायदा इजलास बुलाया जाता था और सरकूबी के लिए बाकायदा इकदाम उठाए जाते थे। आप याद रहे कि गुज़श्ता दिनों इज्तिमाई स्ट्रीट क्राइम का एक वाक़या पेश है, 100 लोगों को एक साथ जो है ना वो उनको लूटा गया है, तो इस नोयत की। अच्छा, अब मैं सबसे पहले एपेक्स कमेटी तो पूरे मुल्क में बनी थी ना, बनी क्यों थी? नेशनल एक्शन। अब आप लोग सवाल तो कर देते हो, मैं बहुत माजरत के साथ बैकग्राउंड देखते नहीं हो। बनी क्यों थी एपेक्स कमेटी? नेशनल एक्शन प्लान बनाया था 20 नुकाती, उसके तहत उन्होंने कहा कि सूबे एपेक्स कमेटी बनाए। सिंध सूबे ने 26 मीटिंग्स एपेक्स कमेटी की की, किसी और सूबे ने नहीं की। तो आप उसको मरहूम कहो, जो कुछ भी कहो, लेकिन अगर हम मरहूम हैं तो उनके इधर मरहूम हो गए तो उनका बरसियाँ हो चुकी है कहीं। एक सेकंड, मैं खत्म कर रहा हूँ। बरसियाँ कहीं गुजर चुकी हैं उनकी, लेकिन मैं किसी को नहीं कहूँगा। और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हुकूमत ने अपना पूरा व्यू चेंज कर दिया, उसको 20 से घटा के 14 किया, सूबों को बिल्कुल निकाल दिया तकरीबन। ये सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो एपेक्स कमेटी का निज़ाम ही थोड़ा वीकर हो गया। उसके बावजूद पिछली एपेक्स कमेटी हुए उसके 3-4 महीने हुए, और हम जल्द करेंगे इन चीज़ों के लिए भी। और इवन अदरवाइज एपेक्स कमेटी बनी थी नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात के लिए। 20 नुकात में स्ट्रीट क्राइम कहीं नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हम ये चीज़ें भी डिस्कस करते थे इन चीज़ों में। और एक और भी आपकी सवाल था, नहीं यही था। मेरा सवाल एक सर्वे आया था, एक सर्वे आया था, उसमें उस्मान गुज़ार पहले नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे दूसरे, चौथे नंबर पे आप थे। तो सर्वे में आपकी पोजीशन बड़ी खराब आई, आप इतने एक्टिव हैं, तो क्या काम आपके लोगों को नजर नहीं आ रहे? सब सर्वे में भी धांधली हो रही है आपके साथ? मैंने कोई धांधली नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं, मैं
मुझे और मेहनत करने की जज्बा पैदा होता है इस चीज़ों से। अगर मुझे पहले नंबर पे करते शायद मैं थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाऊँ, कंप्लेसेंट यानी मैं सुस्त हो जाऊँ, ढीला हो जाऊँ। ये तो अच्छी बात है यार, मुझे चौथे नंबर पे किया है, मुझे पहले पे पहुंचना है। अगर नहीं करेंगे तो खैर है, मैं वैसे ही काम करता रहूँगा, तो वो नंबर को छोड़े। जी कामरान, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल सबके सामने, मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी फोर्स बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जैसे माजी में ईगल स्क्वाड था या लाहौर में डॉल्फिन फोर्स है, कराची में कोई ऐसी फोर्स नहीं है, सिवाय थानों की पुलिस पर ही इंहिसार किया जाता है, तो क्या कोई ऐसी मैंने एक पुलिस से कहा है कि अपने तजावीज़ लेके आए और जो भी इस करंट सूरत हाल में हैं उनके तजावीज़ वो लेके सामने पेश करें और हम देखें आज क्या फैसले होते हैं उस सिलसिले में। पीटीआई भी ऐलान कयो आहे जेको 26 तारीख़ खां कराची तरफ़ ईंदो, अहिड़े मौक़े ते जॾहिं पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद वञे थी वफ़ाक़ी सरकार ख़िलाफ़, ऐं वफ़ाक़ी सरकार कालाबाग डैम जो जेको आहे वरी राह ॻाल्हि थिए पई, इन लॉन्ग मार्च खे तव्हां कीअं था ॾिसो? सबसे पहले तो हमारा लॉन्ग मार्च बहुत पहले से अनाउंस हमने कर दिया था। चेयरमैन साहब ने 2 महीने पहले बताया था कि मैं जाऊंगा लॉन्ग मार्च पे इंशाल्लाह ताला, और मैंने इस लॉन्ग मार्च की वजूहत जो है ऑब्जेक्टिव्स वो भी कई बार बताए। ये कहना कि मुझसे हमसे सवाल ये होता है कि हुकूमत गिर जाएगी आपके लॉन्ग मार्च से। इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए हम जो लोगों के मसले हैं, जिसमें मैंने हमारे अपने सिंध सूबे के लोगों के मसले हैं वो भी बताएं, जिनमें आपने एक जिक्र किया कि कालाबाग डैम को दोबारा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे अभी पता पक्का नहीं है, मैंने टीवी पे एक टिकर ज़रूर सुना था एक शख्स का जिसका नहीं भाई एक सिंध के शख्स का मैंने एक देखा था कि कहा गया था कि कंसेंसस पैदा करेंगे। पहले भी किया था ये कंसेंसस पैदा नहीं होगा भाई, 3 असेंबलियाँ इसके खिलाफ बोलते, हमारी असेंबली 3 बार एटलीस्ट कर चुकी है इसके खिलाफ रेजोल्यूशन। मैं ख़त्म कर लूँ ये सवाल है। इसके अलावा हमारे जो और इश्यूज़ हैं, मैंने आपसे जिक्र किया था, मेरी फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर से बात हुई है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उनके जवाब का। आज मेरी उनसे दोबारा हमारी कॉल्स मिस हुई हैं 1-2 कि जो 32 अरब रुपए काटे हैं उसका क्या जवाब देते हैं वो हमारे अफसरों के साथ नहीं, सिंध में गवर्नेंस के ख़िलाफ़ जो तरीक़ाकार इख्तियार किए जा रहे हैं, आपके गैस के जो मसाइल हैं, इम्तियाज़ शेख साहब खड़े हैं साथ, जो आर्टिकल 158 है उसमें ऑनरेबल जज ने सिंध हाई कोर्ट में कहा है कि जी आप जो MDSS GC से थे, कहते कि आप होते कौन है आइन की इनराफी करने वाले, और उन्होंने फेडरल सेक्रेटरी को बुलाया। जो महंगाई का तूफान, जो बेरोजगारी इस मुल्क में हो गई है, इन सब को लेके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लोगों के पास जा रहे हैं ताकि वो पैगाम लोगों को पहुंचाएं अपना और लोगों से सुने। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो इस वक्त हमारा मसला ये हो गया है कि एक तरफ ये 12 रुपए पेट्रोल महंगा कर देते, दूसरी तरफ एक और कार्रवाई डाल देते। मैं ये नहीं कहता किसी सहाफ़ी को पकड़ के मार कूट कर देते, आपकी पूरी मीडिया लग जाती है उसके पीछे। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो असल मसाइल हैं इस मुल्क के, वो लेके लोगों के पास जा रहे हैं ताकि आप यानी मीडिया और मैं